Good morning, everyone. Today we are going to read chapter Great Personalities. Before we begin, many great personalities have been taken birth in India. They worked for mankind the whole life. Let's know about some great personalities in this chapter. At first, we are reading about Maharaja Agrasen. Long ago, there ruled a king named Ballabh in Pratapnagar. He belonged to the Suryavanshi solar race. His eldest son was Agrasen. With the passage of time, he grew into a handsome young man with a tender and kind heart in his breast. He was brave and learned various strategies and tactics of warfare from various prospectors who will father and had employed. In the time to come, he employed this trait to the best use when he expanded his kingdom from a small unknown one to a large or one unfurling victory flag over the most part of subcontinent, thus acquiring the title of Maharaja, emperor, for himself and become immortal as an ideal king who looked after his subjects in the best possible way. तो महाराजा अग्रसेन, इनकी कहानी यहाँ पे दी गई है। बहुत साल पहले एक राजा थे जिनका नाम था बल्लभ, जो प्रतापनगर के राजा थे। वो सूर्यवंशी रेस से थे, सूर्यवंशी वंश से थे। इनके जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन बाद में ये बने। और जब ये जवान हुए बहुत ही हैंडसम थे और साथ में इनके दिल में बहुत ही दया थी। इनको बचपन से ही बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स जो वारफेयर के होते हैं, लड़ाई के लिए सिखाए जा रहे थे, जो इनके फादर ने इनको एम्प्लॉयड किया गया था। ये सब सीखने के बाद जब वो राजा बने और अपने किंगडम को बड़ा करना चाहा, जो एक छोटा सा और अननोन राज्य था, उसको बड़ा करके उन्होंने बहुत बड़ा राज्य स्थापित कर लिया। और इस तरह से उन्होंने अपना टाइटल रखा महाराजा, एम्परर। और उन्होंने इस तरह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। When Agrasen was 35 years old, his father desired to embrace the fourth stage of life, the renunciation of the material world. He coronated Agrasen as the next king and advised him to rule with sympathy, compassion, and by winning the cooperation of all people, because it was the only key to prosperity. Agrasen was a worthy son of a worthy father, so he followed the wishes to his father from the core of his heart and ruled the kingdom with such kindness and welfare oriented activities that he made a place for himself in the heart of people. तो जब अग्रसेन 35 साल के हुए तो उनके फादर ने कहा कि मुझे अब फोर्थ स्टेज में जाना चाहिए। फोर्थ स्टेज से मीन्स है यहाँ पे कि उसे अब संन्यास में चले जाना चाहिए। वो जाने से पहले अपने सबसे बड़े बेटे अग्रसेन को अपना राजा बना के जाते हैं और उसे एडवाइस करते हैं, सुझाव देते हैं कि उसे सिंपैथी के साथ काम करना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है उन्हें, क्योंकि जो भी राज्य होता है उसके खुशहाली में ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अग्रसेन बहुत ही वर्दी सन था अपने वर्दी फादर का। उसने अपने पिता के बात को बहुत ही दिल से लगा के रखा और धीरे धीरे अपने किंगडम को आगे बढ़ाता रहा, इसी तरह काइंडनेस और वेलफेयर के तरीके से। और इस तरह से उनने एक प्लेस ऐसा बना लिया लोगों के दिल में जो आज तक नहीं मिट पाया। The first thing it is said that King Agrasen did was to take a round of kingdom, every street, every village and every town, to find out what trouble and allied people. His tour gave him the impression that poverty in the subjects was the main cause of their troubles. He immediately overtook effective steps to eradicate poverty. Not only this, he created an atmosphere conducive for trade and provided such facilities which were needed for healthy growth of trade and farming activities. Besides, he got new roads constructed and new trees planted along the roads. He also got dharmsalas, inns built along the road, complete with food provisions on reasonable rates, so that the traveling business people could stay there safely and comfortably. तो जब अग्रसेन राजा बना तो उसने सबसे पहले
बोला कि मैं पूरे किंगडम के हर गली हर जगह को घूमना चाहता हूँ, हर गांव घूम के देखना चाहता हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम है क्या। फिर वो निकल जाता है और घूमने के बाद उससे पता चलता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीबी है जो उसे दूर करनी है। वो इसके लिए बहुत सारे चीज़ों को उपाय निकालता है। वो सबसे पहले ट्रेड को फ्लोराइज करता है, व्यापार शुरू करवाता है और लोगों को यहाँ पे ट्रेड करने में सुविधा हो इसके लिए उसने बहुत सारे रोड्स बनवाए, रोड के किनारे किनारे पेड़ लगवाए ताकि लोग गर्मी में आ जा सके आराम से। साथ में जगह जगह पे धर्मशाला इंस बनवाए जहाँ पे लोग रात में रुक सके और उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम दिया जा सके जो बहुत ही कम पैसों में मिल सकता है। इस तरह से बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, सेफ्टी से और कंफर्टेबली स्टार्ट हो गया। किंग अग्रसेन also encouraged people from other states to come and settle in his kingdom. He instructed his subjects to help the people who came and settled there. As a rule, all the subjects were required to give to the newcomer a copper coin and a brick to make his dwelling. It is learned that he often said, economic depravity has not much to do with poverty as is mental satisfaction. The rich and the poor run behind riches alike, but poverty cannot be eradicated without having a feeling of contentment. फिर किंग अग्रसेन बाकी राज्यों से जो लोग थे उनको इनवाइट किया कि आप आकर के हमारे राज्य में रह सकते हैं। साथ ही साथ उसने अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को कहा कि जो भी बाहर से लोग यहाँ रहने आएंगे, गांव के हर इंसान उसे एक कॉपर कॉइन देगा और साथ में एक ईंट देगा ताकि वो अपना घर बना सके और पैसों से व्यापार कर सके। इस तरह से उन्होंने एक बात कही कि इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी हमारा जो होता है, इसे हम ठीक करने के लिए गरीबों को नहीं हटा सकते, हमें गरीबी हटानी पड़ेगी। ये गरीबी जो है ये मेंटल स्टेट, मतलब हम दिमाग में सोच लेते हैं कि हम गरीब हैं, इस चीज़ को हमें दूर करना है। और इस चीज़ को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का हेल्प करें। किंग अग्रसेन वांटेड टू सर्व द मासेस एंड एक्सपेंड हिज रूल फ्रॉम the tiny kingdom that he had inherited from his righteous father. In his bid, he won the support of many kings and often set out the win over the kingdoms and states in the neighborhood and beyond which did not accept his overlordship over them. It did not take a very long time for the tiny kingdom of Pratapnagar to expand into a vibrating large kingdom where trade flourished and people become increasingly prosperous. फिर किंग अग्रसेन जो है वो अपने किंगडम को बड़ा करना चाहते थे। वो अपने फादर के दिए हुए जितना बड़ा राज्य था उसको और बड़ा करने के में लगे थे। इसलिए उन्होंने बाकी राजाओं के साथ संधि कर ली। कुछ राजाएं मान गए लेकिन कुछ नहीं माने। फिर उनके ऊपर युद्ध करके उन्हें अपने अंदर कर लिया गया। इस तरह से बहुत टाइम बीतने के बाद उनका किंगडम जो प्रतापनगर एक छोटा सा किंगडम था अब बढ़ के बहुत बड़ा किंगडम बन गया था। और साथ में यहाँ पे जो व्यापार था, ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लोराइज हुआ। लोग दूर दूर से आके यहाँ ट्रेड करने लगे, व्यापार करने लगे और इस तरह से वहाँ के रहने वाले लोगों का जो जीवन था बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।